السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم سچ کو جھوٹ پر مار دیتے ہیں تو اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، سر توڑ دیتا ہے، اور جھوٹ اسی وقت مٹ جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے۔ اور جو باتیں تم بناتے ہو اس سے تمہاری ہی خرابی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہم سچ کو، یہ سچ ہے، سچ کو جھوٹ پر دے مارتے ہیں تو اس کا سر توڑ دیتا ہے، بھیجا نکال دیتا ہے، اور جھوٹ اسی وقت مٹ جاتا ہے۔ تو جو باتیں تم بناتے ہو نا اس سے تمہاری ہی خرابی ہے، اللہ فرما رہے سورہ انبیاء آیت نمبر 18۔ سوچیے آپ، یہ اللہ نے قرآن نازل فرمائے، سچ ہے، یہ قرآن سچ ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سچ آ گیا اور جھوٹ مٹ گیا۔ تو جتنی باتیں قرآن کے خلاف باہر پائی جاتی نا تو سب جھوٹ باتیں، چاہے وہ کوئی بھی کتاب میں ہو، حدیث کی کتاب میں ہو یا عالم مفتی کی کتاب میں ہو، بخاری میں ہو، مسلم ترمذی میں ہو یا فضائل اعمال منتخب حدیث میں ہو، جو بھی بات قرآن کے خلاف ہے وہ سب جھوٹی ہے، سمجھے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات کے آگے کوئی بات ٹک نہیں سکتی، لیکن آپ لوگ ضد میں اپنے فرقے کی بچاؤ میں اڑے ہیں، سچ کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں قبول نہیں کرتے، تم نہیں سمجھو گے بول کے ٹال دیتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ آیت قرآن کی ان کے لیے، یہ آیت ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، یہود کے لیے، منافق کے لیے، کافر کے لیے یہ آیت ہے بول کے ٹالتے ہیں نا ایسے ہی، کیونکہ آپ کی بات رد ہو رہی ہے نا، جو آپ بیان کرتے آ رہے زمانے سے، مدرسے میں، مسجد میں، حدیث جو بیان کر رہے جھوٹی حدیث، اس کے خلاف باتیں آپ کو ہضم نہیں ہوتی، حدیث کے خلاف باتیں، قرآن میں حدیث کے خلاف باتیں، جو جھوٹی حدیث ہے نا اس کے خلاف باتیں، سمجھے آپ؟ سچ قرآن ہے، اللہ بول رہے ہیں ہم سچ کو جھوٹ پر مارتے ہیں، تو سچ تو ادھر ہے نا، سچ ادھر ہے، جھوٹ کدھر ہے؟ دوسری کتاب میں، حدیثوں کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ سچ کو جھوٹ بات پہ مار دیتے ہیں، سمجھے آپ؟ لیکن آپ لوگ ضد میں اڑے ہوئے ہیں، قرآن کی مخالف، حالانکہ ایک گروہ دنیا میں ہر جگہ ہے جو قرآن کی بات کر رہا ہے، قرآن کی بات پیش کر رہا ہے، لیکن اکثریت بریلی، دیوبندی، اہل حدیث بخاری کو پکڑے ہوئے، حدیثوں کو سب ملاوٹی، اس میں سب دشمن نے ڈالا وہی حدیث کو پکڑے ہوئے، سمجھا؟ سب جھوٹ باتیں جتنی بھی ہے نا، جتنی جھوٹ باتیں ہیں قرآن کے خلاف سب غلط ہے، سمجھا؟ خالی بس ایک فرقہ دوسرے فرقے کی بات کو رد کرتا ہے اور خود جو اپنے فرقے میں قائم ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا، دوسرے فرقے کی ایک بات رد کرتا ہے اور خود کی غلطی اصلاح نہیں کرتا، سمجھا؟ ایک گروہ درگاہ مزار نہیں کرتا ہے، نیاز فاتحہ کنڈا کھچڑا نہیں کرتا ہے، ایک جماعت ہے، لیکن وہی جماعت وہاں یہ بات نہیں کرتا، اچھی بات ہے، لیکن دوسری بات جادو ہوتا ہے، نظر لگتی مانتے ہیں، قرآن کے خلاف باتیں، پھر تم بھی انکار کر رہے ہو اللہ کی بات کا، وہ بھی انکار کر رہے ہیں، سمجھے آپ؟ وہ شرک کر رہے، تم کفر کر رہے، اللہ کی بات کا انکار کر رہے نا، قرآن کی بات کا تو کفر ہے، قرآن کی بات، اللہ کی بات کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے، کفر کرنے والے کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، شرک کرنے والے کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھے آپ؟ اللہ فرمائے نا، اب لوگ ہم شرک نہیں کرتے، توحید 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 کا مطلب ہی نہیں معلوم، توحید توحید دم کر رہے، دم کرنا شرک ہے، نبی نے بولے، ابو داؤد کی حدیث، کعبے میں بھی دیکھو دم نہیں ہے، اگر آپ بولتے دم کر سکتے ہیں تو پھر کعبے میں کر کے دکھا دو، چلو کعبے کے طواف جا ہو رہا نا وہیں پہ دم کرو، ایسا پانی کی بوتل پہ یا کسی کو پکڑ کے ایسا کر کے دکھا دو ذرا، کعبے کے اندر جہاں طواف ہوتا ہے، یہاں عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جو آیت میں شرکیہ کلام نہیں ہو وہ شاید سے دم کر سکتے ہیں، ایسا گمراہ کرتے ہیں، بات کو گھماتے ہیں، تو وہی آیت وہاں دم کرو نا، جو آیت میں شرکیہ کلام نہیں ہے وہ آیت آپ بولتے دم کر سکتے، جائز ہے نا، کرو پھر کعبے میں، تو مت دیکھوں، پتا ہے کہ ان لوگوں کو سب پتا رہتا ہے کہ یہاں دم کرنا منع ہے، خود نہیں چھوڑیں گے، اصلاح نہیں کریں گے، کیونکہ پوری ٹولی مان رہی نا اہل حدیث کی دم کرنا جائز ہے، نبی نے بولے شرک ہے،
तावीज भी शिरक है, दम करना भी शिरक है। तावीज में भी कुरान की आयत रहती, दम करने में भी कुरान की आयत रहती, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है। वो भी शिफा के लिए बांध रहे, तुम भी शिफा के लिए दम कर रहे, कुरान की आयत, वो भी कुरान की आयत, तो क्या एक ही तो है, खाली शक्लें बदल गई। वो बांध रहा है, तुम फूक रहे हो, बात तो एक ही है ना, आयत ही पढ़ सब घूम रहा है शिरक। और वो तौहीद तौहीद, खाली एक ही चीज तौहीद, तौहीद का मतलब ही नहीं मालूम। जहाँ शिरक है वह तौहीद कहाँ रहता है? तो शिरक लपेटे हुए पूरा गिरोह पहले दिन, समझे आप? दम कर रहे हो, तो दम करना शिरक बोल दिए। फिर यहाँ तो शिरक भी कर रहा है और कुफ्र भी कर रहा है। अकीदे खराब, बोले अकीदा दुरुस्त होना तो चाहिए, बोलते हैं ना, अकीदा पहले दुरुस्त होना चाहिए। कुछ ही अकीदे खराब है, नजर लगती मान रहे, जादू मान रहे, जिन आदमी में पकड़ रहा मान रहे, सब कुरान के खिलाफ बात है। देख लो आप कुरान में, जादू से नफा नुकसान होता है, न नजर लगती। यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या लगी, बल्कि देखने वाले हाथ काट लिए। सूरह यूसुफ में देख लो, देखने वाली औरतों ने हाथ काट लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत थे, नजर लगना चाहिए उनको, यूसुफ को। अरे क्या था, गुमराही बातें, अकीदे इतने खराब, खुद के अकीदे इतने खराब है, बोले अकीदा पहले सही होना चाहिए। अकीदे कितने खराब है, जिन पकड़ता है, जिन आंग में घुस गया है, जिन को छुड़ाने जाते आलिम मुफ्ती, समझे आप? जिन को छुड़ाने जाते, अब इसके आंग में जिन है, इनको गैब मालूम पड़ा, अब गैब भी जानने लगे लोग, इसके आंग में जिन है नहीं है, गैब की बात है ना, अनसीन। गैब मतलब अनसीन, छुपी हुई चीज, उसके अंदर जिन है नहीं है उनको दिख जाता है, बाकी हाथ में चार खड़े रहते उनको नहीं दिखता, सिर्फ इनको दिखता है, समझे आप? ऐसा झूठे, उनकी झूठ पकड़े भी जाती है ना, पकड़े गई। अहले हदीस लड़की हु हा कर रही थी हमारे मोहल्ले में, अहले हदीस लड़की, घराना अहले हदीस बोलोगे, सर पटक रही, कपड़े फाड़ रही, चिल्ला रही, तो अहले हदीस तो अहले हदीस आलिम को बुलाएंगे ना। अहले हदीस लोग अहले देवबंदी आलिम को नहीं बुलाते, अहले हदीस आलिम को बुलाए, तो आलिम साहब आए, बोले हाँ तो जिन पकड़ लिया है। पहले बोले इन पे किसी ने कर दिया, फिर बोले जिन पकड़ लिया है। अब कुछ भी अंदाजा की तीर छोड़ते, आलिम मुफ्ती अवाम को गुमराह करते, खुद भी गुमराह अवाम को। अब भाई आयत पढ़ के ये वो दम हम करके चले गए। हमारे हमारे ही दोस्त है, वो इस सब बात को नहीं मानता, वो उस घर में दोस्ती थी, क्या गया, बोला हट जाओ सब लोग, जरा लड़की को अकेले में मेरे को बात करना है। गया, लड़की वही आके मेरे को बात बोला, बोले मैं गया उसको अंदर, लड़की को अकेले, बोला क्यों ऐसा एक्टिंग कर रही थी, मेरे को मालूम है ना जादू होता है ना जिन पकड़ता है, सच बता तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हरकत कर रही थी, एक्टिंग ये। तो बोले हाँ वो घर वाले उससे शादी करा रहे ना, तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। सोचे आप, सुनिए आप, तो पता क्या चला, वो बाहर आके बताया लोग कि भाई इसको न जिन न जादू, क्योंकि हमारे ख्यालात का था ना, पहले दिस नहीं था, तो पूरा भांडा ही साफ कर दिया ना, पर्दा ही उठा दिया। तो पता क्या चला, आलिम भी चीटर, और जो मान रहे जादू या कर दिया, जिन पकड़ा, वो भी गुमराह, आलिम है वो भी गुमराह। आलिम तो बोल के गया ना इसको कर दिया या जिन पकड़ लिया है, कुछ भी बोलते अंदाजा की दम वम करके चलेगा, तो वो भी गुमराह है ना, कुछ भी नहीं मालूम। तो यार इसने पूरा भांडा ही फोड़ दिया कि कुछ भी नहीं है, खाली एक्टिंग कर रहे, समझा? तो न जादू होता, न नजर लगती, न जिन पकड़ता। अकीदे कितने खराब है लेडीज वाले लोग, और दम कर रहे बैठ के। सोचिए आप, दूसरे को से बोल रहे, देवबंदी बरेली को, कम इल्म वाले को खींचते रहते, अरे अकीदा सही होना चाहिए, तौहीद तौहीद, और खुद के अकीदे इतने खराब है, इतने खराब है। सोचिए आप, शिर्क लिए हुए और तौहीद की बात करते हैं, दम करना शिर्क है, कुफ्र, जादू मानना कुफ्र है, समझे आप? अकीदा रखना, जादू बातिल चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग कुरान भी नहीं मानते, हदीस भी नहीं मानते। इब्न माजा की हदीस है, जो जादू को सच मानेगा जन्नत में ही नहीं जाएगा। जो जादू को सच मानेगा, ये जादू फैक्ट है, फैक्ट सच है, जो मानेगा वो जन्नत में ही नहीं जाएगा। नमाज रोजा करते रहो, जन्नत में नहीं जाएगा बोल दिया नबी ने। अल्लाह भी बोल दिया है, युमिनु बिल जिब्त, सूरह निसा 51। जिब्त का मतलब डिक्शनरी में खोल के देखो, बेअसल बेफायदे चीज, जिब्त का मतलब, उसमें जादू झाड़ फूक सब आ गया, दम तावीज। बेअसल बेफायदे चीज, जिसकी कोई हकीकत नहीं, बेअसल मतलब जिसकी कोई हकीकत नहीं। तो वही कुरान में भी युमिनु बिल जिब्त, ये लोग जिब्त को मानते हैं। और इसकी तफसीर देखना, जिब्त की तो इकबाल किलानी की तफसीर खोल के देख लो आप, वो आपके ही गिरोह के इकबाल किलानी,
एलएजीसी आली है, तर्जुमा किए ना, उनकी तफसीर में देखो सूरह निसा 51 जिस का पूरा एक्सप्लेन किए, तफसीर किए, जादू टोना झाड़ फूक सब आ गई उसमें, जादू भी आ गया। तो अगर आप लोग यूमिनो बिल जिप्त, इनका हाल ये है कि जिप्त को मानते हैं, जादू टोने को मानते हैं, हालांकि नहीं मानने का हुक्म है, बातिल चीजें हो। नबी भी फरमाया जो सच मानेगा, इब्न माजा की हदीस, हदीस हदीस बहुत करते हैं ना, जो असली हदीस सही हदीस प्योर कुरान के अकॉर्डिंग, उसको आप लोग नहीं मानते, उसकी तावील करके घुमाते रहते। जो जादू को सच मानेगा, मुसद्दिक लिखा है अरबी में, देख लो आप हदीस इब्न माजा, जो जादू को सच मानेगा वो जन्नत में दाखिल ही नहीं, क्योंकि जादू सिफत, जादूगर के अंदर अल्लाह की सिफत कहाँ से आ गई? जो सिफत है अल्लाह की, बगैर अजबात के अल्लाह किसी को गिरा देता है, किसी को उल्टी उल्टी करा देता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, अल्लाह ताला बगैर अजबात के पहुंचाता है, क्योंकि अल्लाह की सिफत है। जादूगर यहाँ बैठा हुआ दूसरे को कर दे रहा है बगैर अजबात के, समझा? सोचिए आप, ये सब गुमराही बातें, समझा? जादू को जो सच मानेगा जन्नत मिल जाएगा। जादू क्या? फेक, हाथ की सफाई, ट्रिक, समझा? तो ये लोग जादू मान रहे हैं, नजर लग रही है। सारे यूरोपियन एक से खूबसूरत बच्चे, खूबसूरत औरतें घूम रही है स्टेज पे, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चल रही है, कोई नहीं गिर रही, किसी को नजर नहीं लग रही। ये अहलेदिस गिरोह अपने आप को तौहीद परस्त समझते और बोलते हम ही सही है, समझा? अकीदा सही होना चाहिए, अकीदा ही खराब है, बोले नजर लगती गिर गए, वो भी झूठी हदीस को मान रहे ना। एक साहबी ने एक को देखा, मर्द को देखा और नहा रहे थे तो गिर गए, मर्द को देख रहा तो गिर गए, बोले क्या नजर लगे, कुछ भी कहीं भी फिट कर देते ले जाके। यहाँ मर्द औरत को देख रहा, मर्द बच्चे को देख रहा, औरतें बच्चे, एक से एक यूरोपियन खूबसूरत दुनिया में बच्चे, किसी को नजर नहीं लग रही, यहाँ नजर लग गई, गिर गए। तो यहाँ स्टेज पे गिर जाना चाहिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे, तो कोई गिरता है? देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं, टीवी पे, चैनल पे, मोबाइल पे, लाइव स्टेज पे, हॉल में, कोई नहीं गिरता है। सब अकीदे कितना खराब है आप देखो ना, जादू का अकीदा, नजर का अकीदा, जिन आंग में घुसता है अकीदा, जिन बोल रहा है, जिन ही इब्लीस बोल रहा है मेरा तो तुम पे कुछ जोर था नहीं, खुद ही वो इकरार कर रहा है, मैंने तुम्हें सिर्फ पुकारा था तो तुमने मेरा कहा मान लिया, समझा? कैसा पुकारता होगा? वसवसा दिलाता ना, बुरे ख्यालात जो आते हैं, वही जिनका पुकारना है, बुरे ख्यालात आना, वसवसा आना, तो उसके कहने पे हम अमल करते, चोरी कर ले कोई नहीं देख रहा, ऐसा आता है ना ख्यालात, गलत काम कर ले कोई नहीं देख रहा, कर ले, ऐसा ख्याल आता है तो हम अमल करते, वो थोड़ी जबरदस्ती करवाता है, वो तो सिर्फ थॉट आते हैं हमारे पास, बुरे ख्यालात। वसवसा का मतलब होता है बुरे ख्यालात आना, तो शैतान ख्यालात डालता है तो हम अमल करते हैं, हम चाहे तो रुक भी सकते ना, नहीं अल्लाह मना फरमाया है, गलत काम नहीं करना है, शैतान बोल रहा करो, है ना, हमारे अख्तियार में, उसके अख्तियार में नहीं, वही बोल रहा हूँ, मेरा तो तुम पे कुछ जोर था ही नहीं, ये सूरह इब्राहिम में है कि मेरा तो तुम पे कुछ जोर था ही नहीं, हाँ मैंने सिर्फ तुमको पुकारा था तो तुमने मेरा कहा मान लिया, तो आज मुझ पे मलामत मत करो, अपने आप पे करो, उसका जोर नहीं इंसान पे, समझा? दुनिया इम्तिहान गाह है ना, इम्तिहान गाह में अल्लाह डिस्टर्ब नहीं कर रहा हमको, तो जिन को कहां से दे देगा डिस्टर्ब करना? अल्लाह जबरदस्ती हमसे कोई काम तो नहीं करवा रहा ना, नेक काम करो, जबरदस्ती तो नहीं छोड़ दिया है, चाहे तो नेक अमल कर, चाहे तो बुरा अमल कर, जैसे करेगा वैसा भरेगा, नेक करेगा तो जन्नत, बुरे करेगा तो जन्नत। दुनिया इम्तिहान गाह है ना, इम्तिहान में डिस्टर्ब कोई करता है क्या? एग्जामिनेशन हॉल में ना अल्लाह कर रहा है ना जिन, समझा? फ्री विल, फ्री छोड़ दिया हमको, चाहे तो नेक अमल करे चाहे बुरा, नेक करे तो जन्नत, बुरा अमल किए तो जन्नत, तो इम्तिहान का हमें डिस्टर्ब नहीं करता, अल्लाह खुद नहीं कर रहा है, जो हमको पैदा किया उस पर हमारा हक है, उसने पैदा किया, वही जिला रहा, वही मौत देगा, वही जन्नत देगा, हाथ पैर दिया, खाना पीना, पानी बरसात में, सब अल्लाह ही कर रहा है ना, हाथ दिया, हाथ पैर, दिल दिमाग, तो वो जबरदस्ती नहीं कर रहा हमको नेक काम करने में, तो शैतान को छोड़ देगा क्या कि तू दुनिया में उसके ऊपर हावी हो जा, घुस जा, सब गुमराही, अकीदा कितना खराब है। तो उसका मिशन तो है कि अब अपना नाम लोगों को मैं गुमराह करूंगा, शैतान ने बोला ना अल्लाह को, उसका मिशन है कि मैं लोगों को जहन्नुमी बनाऊंगा, गुमराह करूंगा, जहन्नुमी बनाना उसका मिशन है कि मैं सबको गुमराह करूंगा और तुम अक्सर को तू गुमराह पाएगा, नाशुक्रा, समझा? तो अक्सरियत को जहन्नुम में ले जाने का उसका मिशन है ना। अब आंख में घुस गया तो इंसान पागल हो जाता है, पता है? अगर जीन आंख में घुसेगा तो इंसान पागल हो जाता है ना, तो
पागल पे तो शरीयत ही नहीं है, ये तो सारे फिरके मानते हैं और सारे आलिम मुफ्ती मदरसा मानता है। पागल इंसान पे शरीयत नहीं है, फ्री है, यानी उसको नमाज रोजा शरीयत की उस पर पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो पागल है, मेंटल दिमाग खराब। तो वो पागल बना के एग्जाम से फ्री कर देगा क्या? जुर्म से बरी कर देगा उसको? वो अपने मिशन के खिलाफ काम कैसे करेगा? समझे आप? अपने मिशन के खिलाफ काम कैसे करेगा कि मैं इसको अंदर घुस जाओ और इसको एग्जाम से फ्री कर दूं? इस पे शरीयत ही नहीं है, इस पे शरीयत नहीं, इसकी पकड़ नहीं है। पागलपन की शरीयत का है, जो अकल रखते हैं उनके शरीयत है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है अकल इस्तेमाल करो। तो जो पागल है वो अकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको पागल ही बोला है। समझे आप? अकल इस्तेमाल मत करो बोलते ना, अकल को दखल मत दो, अकल इस्तेमाल मत करो, तो अल्लाह के खिलाफ बातें। अल्लाह बोल रहे हैं अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो। अल्लाह बोल रहे हैं अकल से समझो, अकल रहेगी तो ही समझेगा ना आदमी। ये लोग बोलते हैं अकल को दखल मत दो, अकल से मत समझो, अकल इस्तेमाल मत करो। अगर अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अल्लाह क्यों बोल रहा है अकल इस्तेमाल करो? क्या अकल नहीं रखते, अकल से काम नहीं लेते? बार बार कारोबार बिजनेस लेन देन अकल से ही करते ना, क्या अकल को साइड रख देते, कुछ भी उठा कुछ भी करते कारोबार? पहले अकल इस्तेमाल करते, प्रॉफिट एंड लॉस है, कितना फायदा कितना नुकसान, करूँ नहीं करूँ, है ना, अकल इस्तेमाल करते। तो अल्लाह बोला अकल इस्तेमाल करो। और ये लोग, क्योंकि इनकी बातें सब रद्द हो जाती ना, अकल इस्तेमाल मत करो, जैसा लिखा मान लो, जो हम देंगे तुम ले लो, सब झूठ मत देखो, चेक मत करो, अकल मत इस्तेमाल करो, जो हम देंगे आलिम अवाम ले लो। इसीलिए तो सब गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए तो अल्लाह ने पहले ही आलिम लोग से अलर्ट कर दिया, इन्होंने अपने उलमाओं को रब बनाया। तो उलमाओं को रब मत बनाओ, अल्लाह बोल रहा है, उलमा की बातों पे चलना, उलमाओं को रब बनाया है। तो अल्लाह ने सूरह तौबा में अलर्ट कर दिया है पूरे इंसान, उन लोगों ने अपने उलमाओं को रब बनाया है। तो उन लोग बनाए तो तुम भी मत बनो अपने उलमाओं को रब, उनकी बातों पे मत चलो, अल्लाह की बातों पे चलो, कुरान पे चलो। अल्लाह की बात इसमें कुरान में, तो अल्लाह की बात पे चलना, अल्लाह को रब बना। आप पहले ही बता दिया कि उलमा लोग भी गुमराह करेंगे अवाम को, उलमा ही करते ना, अवाम तो खुद पढ़ती नहीं कुरान, वो आलिम उलमा के चक्कर में फंसी रहती। समझे आप? इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहे सच बात तो हम झूठ बात पे मार देते हैं। कुरान की बात अल्लाह ताला झूठ बात, जो बुखारी में फजाइल अमाल मुस्लिम तिरमिज़ी में है, तो सब अंदर उसके अंदर बहुत सी बातें झूठी है। तो झूठ बात को अल्लाह अपनी कुरान से मार देता है, तो उसका भेजा साफ हो जाता है। जो लोग झूठ बात लेके चल रहे हैं ना, उनका भेजा निकाल देता है, सर तोड़ देता है। समझा? अल्लाह ताला एकदम गुस्से में बता रहे बात एकदम, कि हम सच को झूठ के सर पे मार देते तो उसका सर तोड़ देता है, भेजा निकाल देता, झूठ वही मिट जाता है। एकदम गुस्से में अल्लाह ताला बोल रहा है। तो सच बात है अल्लाह की कुरान में, हर मसले में, जो भी मसला है, वली अल्लाह सुनते नहीं सुनते, कुरान में जवाब है। सच बात क्या है, सुनते नहीं सुनते, सच जानना है तो कुरान खोलो। वली अल्लाह, पैगंबर, जितने पैगंबर गुजर गए, मर गए जो लोग क्या हमारी बातें, दुनिया के सब इंसानों की बातें सुन रहे? उसका जवाब अल्लाह दिया, सच बात कुरान में नहीं सुन रहे तुम्हारी पुकार, बल्कि तुम्हारी पुकार से बेखबर और दुश्मन हो जाएंगे। सूरह अल-अहज़ाब 5-6 देख लो आप। समझे? सब बातें अल्लाह बता दिया है। अल्लाह के सिवा किसी के भी नाम का मत बनाओ, मत खाओ। जिस चीज पे अल्लाह के सिवा किसी का नाम लिया गया है मना है, समझा, हराम है। सूरह बकरा 173 में, सूरह माइदा नंबर 3, सूरह अनाम 145, सूरह नहल 115, 4 जगह है। जिस चीज पे अल्लाह के सिवा किसी का भी नाम लिया गया है, जिस चीज पे भी, जो भी खाना हो, कोई चीज हो, उस पर किसी और के नाम से अगर करे नियाज नजर, मना है। सब सवाल का जवाब है ना, सच बात कुरान में। तो सच जानना है आप लोग को तो कुरान खोलो, अपनी जबान में पढ़ो, क्या सच क्या झूठ, कौन सच बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। कुरान तो सच है, आप लोग मानते, तो सच पढ़ो ना। सच आपको कहाँ से मिलेगा? हक बात, सच बात कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी आपको कुरान में, सच बात इसमें मिलेगी आपको। आलिम मुफ्ती के चक्कर में मत रहो, लोग गुमराह कर रहे हैं, मिलावट कर करके दे रहे हैं अवाम को, मिलावट करके दे रहे हैं, झूठी हदीस से बातें कर रहे हैं। यहाँ सवाल का जवाब इधर है तो दूसरी किताब से आपको चकमा दे रहे हैं। सवाल का जवाब कुरान में है। अकीदे का जादू होता, नजर लगती नहीं लगती, जिन पकड़ता नहीं पकड़ता, पैगंबर वली अल्लाह जो मर गए गुजर गए वो सुन रहे नहीं सुन रहे, हर सवाल का जवाब है। समझा? तो आप
पढ़ रहे नहीं तर्जुमे से मायने से, इसीलिए गुमराही फैली है। तो अपनी जबान में पढ़िए, आसान है एकदम कुरान, समझे आप। अपनी जबान में पढ़े तो आसान है, जो जबान आती है आपकी, जो जबान आती है, जिस जबान में अखबार पढ़ते हैं ना, वही जबान में कुरान हर जबान में मिल रहा है। लाइए, पढ़िए, जानकारी हासिल करिए, वरना सीधा जहन्नुम। गलत बात, झूठ बात को माने, जहन्नुम में चले जाएंगे, समझे आप। झूठ बात तो सिर्फ मानना, अल्लाह की बात रद्द हो जाती है। झूठ माने कि सच रद्द, और सच बात माने कुरान की, ये है सच बात, सच आ गया, झूठ मिट गया। तो सच बात कुरान में, सच बात कुरान की माने तो हदीस की झूठी रद्द हो जाती, समझे आप। और झूठी हदीस माने तो अल्लाह की सच्ची बात कुरान की रद्द हो जाती। तो आपके हाथ में है फैसला, कुरान को पकड़ना है कि हदीस की किताब, समझे आप। पढ़िए मायने से, हिदायत की किताब कुरान है। आप ही दूसरी किताब से हिदायत ले रहे हैं, गुमराही है दूसरी किताब। कुरान हिदायत की किताब है, अल्लाह फरमाए ना। और तुम्हारे पास आ चुकी कुरान, ये भी बोल रहा है अल्लाह, हर घर में आ चुकी है ना कुरान, हर घर में है कुरान। पढ़िए, मायने वाला लाके पढ़िए। अरबी पढ़ रहे जिंदगी भर, कुछ मालूम ही नहीं अंदर क्या लिखा है, क्योंकि अरबी हमारी जबान, लैंग्वेज नहीं, समझा। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।